How to clear UPSC in your first attempt. Now, this is a topic that I usually don't talk about for the simple reason कि भाई जब 12 लाख लोग पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं एंड 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे होते हैं तो there is a very big factor of luck involved. So whether you clear it in your first attempt or not is a matter of chance, but at that same time there are about 5% people any given year, मतलब 1000 में से 50 लोग ऐसे होते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक्स निकाल रहे होते हैं एंड इन 50 में से भी 5 लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS बन रहे होते हैं. So in this video we are going to talk about कि भाई what exactly is it about those 5 or those 50 people who are clearing it in their first attempt, what are the qualities that they have, what are the things that they do, and अगर आप उनमें होना चाहते हो, if you want to become one of these 50 people, what do you do? Now, who am I to be talking about this? My name is Abhijit Yadav. I've cleared civil services exam 2 times, but that was in my 4th and my 5th attempt. So therefore I have a very good idea about what can go wrong and when and how and where. Now, not just that, with UPSCprep.com, over the past 5 years, we have enabled hundreds of rankers in the civil services exam, जिसमें से पिछले ही साल 2025 में rank 102 अभिषेक चौहान started his UPSC journey with us in the UPSC Essential course. So, with that out of the way, let's get started. Now, the first and most important thing, if you want to clear in your first attempt, is a factor of are you clear about why you want to do it? How, what, सारी चीजें बाद में आती हैं, कैसे करना है, कौन सी किताबें हैं, मतलब दीज आर ऑल इमटेरियल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ क्यों करना है. क्योंकि बहुत से लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कर रहे होते हैं कि भाई चाचा मामा फूफा ताऊ किसी ने बोल दिया है एंड देयरफॉर भाई मतलब मैं स्मार्ट बच्चा था, अरे तुम तो स्मार्ट हो, कर लोगे. इस बेसिस पे अगर आप कर रहे हो तो सूनर और लेटर यू विल हिट अ वॉल एंड फाइंडिंग अ वे टू क्लाइंब दैट वॉल or to break that wall or to burrow underneath that wall is something that you will have to figure out. And अगर आपको अपना why clear नहीं है तो ये चीज़ बहुत difficult हो जाती है क्योंकि civil services exam में when you're supposed to do like these 10, 15, 20 subjects, history, polity, geography, economy, environment, science and tech, art and culture, ancient medieval history, मतलब optional subject, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है. Sooner or later there will be a problem and you will have to deal with it. If you are not clear on why you're doing it, it is very easy for you to give up at that point. And that makes a lot of difference because there are people who will study very hard for 2 months and then give up क्योंकि भाई मतलब ठीक है यार मुश्किल हो गया, मेरे को गाइडेंस नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, वो बहाने ढूंढते हैं. अगर मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ, if I am that kind of a person who finds the excuse कि भाई उस वजह से मेरे साथ ये दिक्कत हो गई तो फिर मेरा नहीं होगा. You are not one of those people who will clear it in your first attempt. And if you want to be one of those people who clear it in their first attempt, you have to develop this habit of कि भाई complain नहीं करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, कुछ दिक्कत होती है तो उसको solution ढूंढो, complain नहीं करना है. Now, once this why becomes clear कि भाई मैं अपने कारण से, अपनी मर्जी से ये चीजें कर रहा हूं, so then we get to the how and the what of it. For this, the first and most important thing that still a lot of people miss even in their second and third attempts is कि you have to be very familiar with the pattern of the exam. Now, this does not mean कि you should be concerned about कि मैं IAS, IPS, IFS बन के क्या करूँगा बाद में. नहीं, वो चीज़ें बहुत अलग हैं and they are not things that you should be worried about when you are worried about clearing the exam. You need to be obsessed with clearing the exam. That's it. IAS बन के क्या करोगे वो चीज़ बाद में आएगी. अब एग्जाम क्लियर करने के लिए मुझे कई चीज़ें करनी है. एक तो MCQ टाइप प्रीलिम्स है, फिर आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव पेपर मेंस है, इंटरव्यू की तैयारी अलग है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव टू अंडरस्टैंड डीपली कि भाई किस चीज़ में नंबर मिलते हैं, किस चीज़ का अप्रिसिएशन ज़्यादा होता है एंड उसके हिसाब से मुझे अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज करना है. इसमें देर आर 2 genuine sources of information. One is your syllabus and the other are previous year questions, meaning क्या पूछ सकते हैं और क्या पूछ चुके हैं. इसके अलावा इस एग्जाम के बारे में कोई और अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है. हर साल YouTube पे 50 वीडियोस आती है कि ऐसे आएगा, ये सवाल आएगा, वहां से आएगा, यूं आएगा. All of these are opinions. All of these are opinions based on these 2 original sources, which is the syllabus and the previous year questions. And therefore, you need to be very, very thorough with this. मतलब PYQs को मुझे इतना हद तक देखना है कि भाई अगर एक क्वेश्चन आता है उसमें एक करेक्ट ऑप्शन था, 3 गलत ऑप्शन थे, मुझे वो तीनों गलत ऑप्शंस के बारे में भी जाके पढ़ना है क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है पिछले साल के क्वेश्चन के एक गलत ऑप्शन से अगले साल का एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है. सो देयरफॉर दिस सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन आई हैव टू हैव विद दिस एग्जाम, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस. नाउ अगर ये चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं, व्हाई आई वांट टू प्रिपेयर, कि भाई मतलब सिलेबस एंड PYQs मैंने ढंग से देख लिया. नाउ वी कम टू द बेसिक्स
बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई हर साल यूपीएससी का पैटर्न थोड़ा बदलता है। देयर हैज बिन नॉट अ सिंगल ईयर जहां पे लोग आके हु हल्ला नहीं करते कि भैया यार ये पैटर्न चेंज हो गया, कुछ नया पूछ लिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हर साल ये होता है। सम ईयर्स में दिस हैपेंस अ लॉट मोर देन इन अदर ईयर्स, बट एवरी ईयर दिस हैपेंस। एंड if you look at rank 1 from 2013, if you look at rank 1 from 2017, rank 1 from 2020, from 2024, 25, पिछले 15 साल के रैंक 1 या एनी टॉप रैंकर्स के आप इंटरव्यूज जाके देख लो, वो लोग सब सेम किताबें पढ़ रहे थे। नथिंग चेंज्ड व्हेन एवरीबडी एल्स वाज क्राइंग अबाउट कि भाई ये बदल गया, वो बदल गया, ऐसा हो गया। द ट्रिक ओवर हियर इज कि इतना स्ट्रॉन्ग करना है अपने बेसिक्स को कि वही बेसिक किताबें एनसीईआरटीज, मतलब लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, बेसिक किताबें 15-20 बार अगर आप कर पाते हो, यू हैव अ वेरी गुड चांस। नाउ इसमें पीपल स्टार्ट क्राइंग अबाउट कि यार मतलब कैसे करेंगे, 15 बार करने में तो बोरियत हो जाएगी। तो यस, जो लोग वो बोरियत से डील नहीं कर पाते उनका नहीं होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जो बेसिक्स है, इतनी बार जब मुझे इनको रगड़ रगड़ के करना पड़ेगा तो ये मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत का काम है एंड इज एब्सोल्युटली बोरिंग। जान निकल जाती है, मतलब मौत आ जाती है ये सोचते सोचते कि यार ये लक्ष्मीकांत फिर से पढ़नी पड़ेगी। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इफ यू कैन डू दैट, इफ यू कैन डील विद इट, यू हैव अ चांस ऑफ क्लियरिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। नाउ एट द सेम टाइम आपको एक बैलेंसिंग एक्ट करके चलना है। बैलेंसिंग एक्ट क्या कि भाई एक जगह पे मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं टू अ सफिशिएंट डेप्थ, बट नॉट सो डीप कि मैं उनमें पीएचडी करने लग जाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई आई वॉज वीक इन ज्योग्राफी, तो मैं इतना सारा ज्योग्राफी पढ़ूंगा अब कि मतलब ज्योग्राफी से कोई सवाल गलत नहीं होगा, बट फिर मैंने इतना ज्योग्राफी पढ़ दिया जो कि कभी एग्जाम में नहीं आएगा। तो यू हैव टू बैलेंस आउट डेप्थ विद ब्रेड्थ। इसके लिए अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड बेस ऑफ कि भाई कितने टाइप के सवाल आते हैं, कैसे डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे मतलब दिस इज वेयर पीपल लाइक अभिषेक चौहान हैड एन एडवांटेज कि यूपीएससी एसेंशियल कोर्स में पास्ट रैंकर्स उनको मेंटोर्स मिल गए हु कुड गाइड हिम कि भाई मतलब यहाँ इतना, इसको इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा ये सारी चीजें देख लो। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी नहीं करना है, बट अगर मैं सिर्फ हवा हवा में चीज़ें करता जा रहा हूं कि भाई मैं रट के चला जाऊंगा और हो जाएगा, नहीं होगा। 20 साल पहले मे बी दैट माइट हैव बीन द केस कि भाई लोग रट के चले गए थे किताब और फिर हो गया था। बट नाउ डेज विद लाइक दीज 15-20 सब्जेक्ट्स एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड, you cannot expect to memorize everything. And when that becomes the case, understanding and the ability to think analytically, these become very very important. प्रीलिम्स में अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, मेंस में आपके एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड एंड इवैल्यूएशन बेस्ड सवाल आते हैं। इन चीज़ों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए देयर आर प्लेंटी ऑफ पेपर्स एंड इफ यू यूजिंग जेमिनाई, चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट्स, तो दे कैन ऑल्सो हेल्प यू फिगर आउट कि भाई क्या गैप्स है, आपको क्या नहीं समझ आ रहा है, हाउ डू आई थिंक एनालिटिकली। दीज आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू वर्क ऑन बाय योर सेल्फ और विद अ मेंटोर, बट ये काम करना पड़ेगा। आप जैसे आज तक हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा, तो नहीं होगा। You will have to upgrade yourself, and in order to upgrade yourself, you will have to put in a lot of hard work. This is where I'll tell you the story of Kanishk Kataria. Kanishk Kataria 2019 में secured AIR 1. Now, this is a guy IIT बॉम्बे ग्रेजुएट है, मतलब IIT में भी टॉप रैंक्स में थे, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, उसके बाद टॉप की नौकरी कहीं कर रहे थे, बहुत पैसा कमा रहे थे, वो छोड़ के तैयारी करने आए। तैयारी करते हुए प्रीलिम्स क्लियर किया एंड उसके बाद in the 2.5 months that he had, 75 days of mains preparation में, he wrote 60 full papers. Now, on your screen, you'll see an image. This is the image that he posted कि भाई ये refills उनकी हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस बंदे को भी, अगर जिसके पास सारी एडवांटेजेस हैं दुनिया में, तो भाई तुम अगर नहीं कर रहे हो तो तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा भी होगा। You have to be willing to work harder than this guy if you want to clear in your first attempt, and that's what it takes. कि ये जो जज्बा है, कि ये जो मतलब अंदर से आग अगर है ना, तो फिर होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसी हवा में चलते चलते नहीं हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि नहीं नहीं मुझे फर्स्ट में ही करना है, बट लाइक मेहनत भी नहीं करनी है क्योंकि 8 घंटे से ज़्यादा कौन पढ़ता है। नहीं पढ़ते हैं ये लोग, इसीलिए होता है इनका फर्स्ट अटेम्प्ट में। नाउ this is where you have to keep in mind that civil services exam preparation is simple but not easy. It is simple because वही बेसिक किताबें हैं जो 15 साल से लोग करते हुए आ रहे हैं, वही आंसर राइटिंग करनी है, मेहनत करनी है, बट
उसको आपको एक नज़रिए के थ्रू करना है। नज़रिया क्या कि मुझे अपनी गलतियों से प्यार करना है, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। यू कैन नॉट स्टॉप एट मेकिंग मिस्टेक्स, यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू लुक एट मिस्टेक्स एनालिटिकली कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग ओवर हियर, हाउ कैन आई इंप्रूव फ्रॉम दिस मिस्टेक। एंड इफ यू हैव दैट माइंडसेट, लाइफ बिकम्स a lot more easier in order to clear civil services exam. क्योंकि ये जो प्रोसेस है, दिस लर्निंग प्रोसेस, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू इम्बाइब। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि मैं बस बार बार चीज़ों को पढ़ता रहूंगा, जो कि हम स्कूल में करते थे कि मैं पढ़ता रहता हूँ और फिर मेरा हो जाता है। नहीं, अब अगर मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही है ड्यूरिंग द एग्जाम, आई नीड टू डू समथिंग एल्स अबाउट इट। सो द बेस्ट वे ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर लर्निंग आउटकम्स, इसके लिए आई मेड past videos, I will make videos again कि भी how do you improve your learning process, you can check those out. But for now, this is what you have to keep in mind. This is an exam where ये ग्रे सेल ब्रेन पावर का इस्तेमाल होने वाला है। Now Abraham Lincoln का एक कोट था that if I have to chop a tree, if I have 8 hours to chop a tree, I'll spend 6 hours sharpening my axe. How many of you have spent even 1 hour improving your focus in the last 1 week? आई कैन टेल यू राइट नाउ, नॉट अ लॉट, क्योंकि हम इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। बट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि भाई मेरा लर्निंग का मेथड क्या है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई फोकस, इज फिटनेस अ फैक्टर ओवर हियर कि भाई मैं थक जाता हूँ, मेरे से सांस चढ़ जाती है, मतलब कमर में दर्द हो जाता है। अगर ये चीज़ें आपको पढ़ने से रोक रही हैं, यू विल हैव टू डील विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ योर सक्सेस इवेंचुअली। एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले लोग ना ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं क्योंकि कंपटीशन इतना इंटेंस है। 12 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, जिसमें टॉप माइंड्स ऑफ द कंट्री आर वर्किंग सो हार्ड कि भैया एक दिन में पूरा 3-3, 4-4 घंटे के आंसर लिख रहे हैं वो, और फिर जाके मतलब वो रैंक लेके आ रहे हैं। तो अगर इनके सामने आप मेहनत कम कर रहे हो, आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो, तो फिर यू आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बस मैं मतलब गधा मजदूरी करते हुए काम पे लग जाऊंगा और फिर बस मैं काम करता रहूंगा। यू हैव टू बैलेंस प्लानिंग विद एग्जीक्यूशन। यू हैव टू प्लान, एंड प्लानिंग के लिए वी टेंड टू गिव अ लॉट ऑफ प्लान शीट्स कि भाई डेली प्लान टारगेट के हिसाब से कि भाई से 3-4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। सो दीज प्लान्स 27 के लिए, 28 के लिए वी ऑल्सो मेड, यू कैन चेक देम आउट, दे आर ऑल्सो इन सिंक विद आवर यूपीएससी एसेंशियल कोर्स। नाउ सिर्फ प्लानिंग से भी नहीं होता, क्योंकि प्लान दुनिया भर के बने हुए मिल जाएंगे, हमने बना के दे दिया है, बट उसको आके करेगा कौन? अगर आप प्लान को नहीं कर पाते हो, बार बार नहीं कर पाते हो, तो यू हैव टू चेंज दैट प्लान। दिस सॉर्ट ऑफ अ टैंडम, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का डांस चलता रहेगा। Sometimes you'll feel कि this plan is not enough for me, I can do more. Sometimes you'll feel this plan is too much for me, I cannot do it. Both of those cases में you have to modify that plan. बहुत बार ऐसा लगेगा कि भाई आज के लिए मुझे ये 3 चैप्टर करने थे, बट वो 3 चैप्टर में से एक चैप्टर है जो भैया दिमाग खा लिया है और वो पहला ही चैप्टर था, वो हो ही नहीं रहा है। छोड़ दो उसको, बाकी दोनों चैप्टर को खत्म करो, हफ्ते में बाकी सारी चीजें जो करनी है करो। वो जो हार्ड चैप्टर है उसको अलग से एक दिन का टाइम दो कि आज बस यही होगा। तो दीज सोर्ट्स ऑफ माइनर चेंजेस एंड एडजस्टमेंट यू हैव टू मेक इन द प्रोसेस। क्योंकि अगर आप ये करने के लिए भी आप अप्रूवल का वेट कर रहे हो कि नहीं कोई बताएगा मुझे तो मैं ऐसे करूंगा, तो फिर दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। That will waste too much time and that is too much energy and effort wasted. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है तो यू हैव टू डेवलप योर इनसाइट अबाउट दिस एग्जाम। यू हैव टू डेवलप योर सिक्स्थ सेंस अबाउट दिस एग्जाम कि क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, क्यों? क्योंकि आई हैव स्पेंट सो मच टाइम विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद सिलेबस, विद प्रीवियस आंसर्स ऑफ टॉपर्स। ये सब चीजें देख देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ इन दिस एंटायर प्रोसेस हैविंग अ मेंटोर can really help you speed up the journey, but again it is not absolutely necessary। बिना कोचिंग के भी ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। Which brings me to the final point कि भाई जो NCERTs एंड रीडिंग लिस्ट हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ये अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हो कि भाई क्या सोर्सेज हैं, कैसे हैं, तो दैट ऑल इज सॉर्टेड। इवन AI चैटबॉट्स विल टेल यू कि भाई बेस्ट बुक्स हर सब्जेक्ट की कौन सी हैं, क्या है। What is much more important is कि भाई उन किताबों को कितना आप इस्तेमाल कर पाते हो, एंड टू डू दैट ये लर्निंग प्रोसेस भी काम आएगा, ये एग्जीक्यूशन वर्सेस प्लानिंग का पार्ट भी काम आएगा, वो 15 बार रिपीट करने वाला पार्ट भी काम आएगा। उसमें फिर वो माइंडसेट ऑफ कि भिन्न मैं 15 बार पढ़ दूंगा, इनको रोक नहीं पाओगे मुझे,
having that crazy mindset and crazy self belief, that delusional self belief कि नहीं, I can do this, is what is required in order to clear in your first attempt.